SA 240, right? Standards on auditing 240. What is SA 240? The auditor's responsibilities relating to fraud. The auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. In an audit of financial statement, you all know, profit and loss, balance sheet, all that. Okay, मालूम पड़ा कि नहीं? So this SA is effective for audits of financial statements for period beginning on or after 1st April 2009. What this SA, that is SA 240, is effective for audits of financial statement for periods beginning on or after 1st April 2009. मतलब आप बोल सकते हो इसका इफेक्टिव डेट क्या है? इफेक्टिव डेट है 1st April 2009. 1st April what? 2009. Got it? याद रखना. Effective date of SA 240 is what? Beginning on or after to what? 1st April 2009. याद रखना. Effective date. Beginning on or after 1st April 2009. Simple. Got it? Clear? So this essay covers the following points. ये essay क्या cover करता है? Following points. क्या points है? Points देखो. Points ज़्यादा है इसमें. एक बार खाली पॉइंट रिव्यू कर लो, फिर स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू स्टडी. फर्स्ट पॉइंट है स्कोप, सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड, थर्ड पॉइंट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, जो कि स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं. रिस्पांसिबिलिटी किसका होता है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड का. किसका रिस्पांसिबिलिटी है? मैनेजमेंट का. प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट का है, याद रखना. रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर. देन फिफ्थ पॉइंट ऑब्जेक्टिव स्टडी करना है. Then requirements. Then 7th point में identification and assessment of the risk of material misstatement due to fraud. Then responses to the assessed risk of material misstatement due to fraud. क्या? Responses to the assessed risk of material misstatement due to fraud. देखो पॉइंट एक साथ लिख दिया मैंने, ये सारे पॉइंट्स आपको आगे पढ़ने, ठीक है? 8 points. Then 9th one, audit procedures responsive to assessed risk. What? Audit procedures responsive to assessed risk of material misstatement due to fraud at the assertion level. ठीक है? क्या? Audit procedure responsive to assessed risk of material misstatement due to fraud at the assertion level. Okay. Then audit procedure responsive to the risk related to management override of controls. 10th point है ये. 11th point है evaluation of audit evidence. Then 12th point, auditor unable to continue the engagement. 13th point, management representations. 14th one, what? Communication to management and TCWG. Communication to management and with what? TCWG. TCWG means those charged with governance. Then 15th point is what? Communication to regulatory and enforcement authorities. What? Communication to regulatory and enforcement authorities. And finally documentation. Right? तो ये 16 पॉइंट है बेटा आपके पास, याद रखो ये पूरा 16 पॉइंट. Got it? जिसको अपने को स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप. ओके. एंड इफेक्टिव डेट याद रखो, ये स्टैंडर्ड का इफेक्टिव डेट क्या बेटा? SA 240 का इफेक्टिव डेट क्या है? 1st April 2009. ऑब्जेक्टिव्स में आता है, याद रखने का. किसमें? ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दिस SA इज इफेक्टिव फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1st April 2009. याद रखना. सो देयर आर 16 पॉइंट, याद रखना, बड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है? चलो, तो सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? स्कोप. क्या? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? स्कोप. अब SA 240, that is auditor's responsibility of, auditor responsibility relating to what? Fraud in an audit of financial statements. में क्या बेटा responsibilities है, right? और यहाँ पूरा 240 किससे related है? याद रखना, fraud से. So ये पूरा वही इसका scope ही है बेटा. The auditor's responsibilities relating to fraud. Auditor responsibilities relating to fraud in an audit of financial statement. पूरा फ्रॉड से रिलेटेड. क्या? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एरर्स, फ्रॉड दोनों होते हैं बेटा, बट एरर्स पे फोकस नहीं करना है इधर. इन किस पे फोकस करना है? जो अनइंटेंशनल मिस्टेक है उसके ऊपर नहीं, इंटेंशनल मिस्टेक के ऊपर, इंटेंशनल मिस्टेक के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर.
फ्रॉड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इसका स्कोप ही है सेम जो SA 240 है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समझे कि नहीं, ये उसका स्कोप है। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड, क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड में क्या बोल रहा है बेटा, देखो मिस स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी मिस स्टेटमेंट होता है बेटा, मिस स्टेटमेंट किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जो भी मिस स्टेटमेंट है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम ईदर फ्रॉड और एरर, यू नो दैट, इधर फ्रॉड और एरर, या तो फ्रॉड होगा या तो एरर होगा जिसकी वजह से मिस स्टेटमेंट होता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ऑडिटर इज कंसर्न्ड विथ व्हाट, fraud. Auditor is concerned with fraud that cause a material misstatement. Material misstatement ही तो important है ना यार, अब छोटा मोटा रहेगा तो फिर इतना ऑडिटर वैसे भी ध्यान नहीं देगा, चल जान दे, माफ किया, ठीक है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, याद रखना, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा, याद रखो। So the auditor is concerned with the fraud that cause a material misstatement in the financial statement, right? And two types of, अभी material misstatement fraud है तो याद रखना intentional misstatement है, intentional है बेटा। So two types of intentional misstatement are relevant to the auditor, that is misstatement resulting from fraudulent financial reporting. Misstatement resulting from what, fraudulent, fraud आई गया ना बेटा, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट कर रहे हो, इंटेंशनली आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रॉन्ग कर रहे हो, बराबर है, मिसलीड कर रहे हो, अपने कंपनी के बेनिफिट के लिए या अपना कोई भी पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हो, व्हाट्सएवर, राइट। सो मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहला। सेकेंडली क्या बोलता है बेटा, मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, राइट है, मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम व्हाट बेटा, मिसस्टेटमेंट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ assets, misappropriation किया of assets का, याद रखना। तो two types of intentional misstatement are relevant to the auditor, what बेटा, एक तो misstatement resulting from what, fraudulent financial reporting, secondly what, misstatement resulting from misappropriation of assets, याद रखना। So this is what characteristics of what, क्या characteristics of fraud, ये second point है, ये याद रखना है। इसमें फ्रॉड कभी भी याद रखना, ऐसे 240 में ऑडिटर का मेन पर्पस ही क्या है, जो भी इंटेंशनल मिस्टेक्स है उसके ऊपर फोकस करना, इसके ऊपर इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, बराबर है, बड़ा अनइंटेंशनल रहेगा तो वो क्या होता है बेटा, वो तो एरर होता है ना बच्चा, क्या होता है वो, एरर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, मैनेजमेंट यार। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना बेटा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस वन, रिमेंबर इट एवरीवन, दिस, व्हिच वन, ये जो है ना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा याद रखने का, भूलने का नहीं, पहले भी बता चुका हूं मैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना बेटा, वो किसका है, मैनेजमेंट का। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन एंड व्हाट बेटा, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, बराबर है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा मैनेजमेंट का है, याद रखो, समझा, ऑडिटर का नहीं है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड हमेशा याद रखना मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर का नहीं, ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव्स में एग्जाम में आया तो गलत मत करके आना, ठीक है, ऑडिटर मत लिख देना, समझे। आधे से ज्यादा लोग वही सोचते हैं, अरे भाई डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड मतलब ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट को ऐसा सिस्टम रखना चाहिए, ऐसा इंटरनल कंट्रोल रखना चाहिए कि फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए, प्रिवेंशन हो जाए उसका, लाइक दैट, बराबर है कि नहीं। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का होता है बेटा, याद रखना, ऑडिटर का नहीं, ठीक है, तो माइंड में रखना एकदम अच्छे से। So the primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with both those charged with governance of the entity and management. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है बेटा, मैनेजमेंट का है, और बोल रहा है TCWG का। अगर दोष चार्ज विद गवर्नेंस है
तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना फॉर द प्रिवेंशन एंड व्हाट बेटा डिटेक्शन. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द व्हाट बेटा प्रिवेंशन एंड व्हाट डिटेक्शन, राइट है, ऑफ फ्रॉड रेस्ट विथ whom, रेस्ट विथ यस TCWG and those charged with what बेटा गवर्नेंस. ठीक है, मतलब TCWG मतलब those charged with governance हो गया and what मैनेजमेंट. ये दिख रहा है, ये TCWG है, that is those charged with governance of the entity and सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैनेजमेंट. बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं. तो हमेशा याद रखना, भूलना नहीं, फिर से बता रहा हूँ क्या कि आपका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, बराबर है, वो किसका होता है मैनेजमेंट का, बराबर है. और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, क्या बेटा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. मालूम पड़ा, पूरा गवर्नेंस इसके हाथ में है, इनके हाथ में है, तो नॉर्मल सी बात है, इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड. मतलब प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखना, हमेशा बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कभी भी याद रखना ऑब्जेक्टिव्स में आया द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, क्वेश्चन मार्क. 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें ऑडिटर भी रहेगा, मैनेजमेंट भी रहेगा, मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, या तो सिर्फ मैनेजमेंट होगा, और 2 अलग ऑप्शंस होंगे. तो आपका आंसर क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट एंड TCWG. TCWG means those charged with governance. What TCWG means what those charged with governance. सिंपल याद रखने का. ठीक है, तो ये पॉइंट सबके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर. 4th पॉइंट है आपका. अब इसमें बोलता क्या बेटा आपको, सबसे फर्स्ट देखो 4 पॉइंट भी 4 है, सब पॉइंट भी इसमें 4 मेन याद रखना आपको. reasonable assurance, risk, management fraud, auditor's attitude. Okay, so reasonable assurance means what, an auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material mistake. Means auditor responsible है for obtaining reasonable assurance. भाई reasonable assurance मिलना चाहिए उसको that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement. याद रखो. हाँ, अब थोड़े अनअवॉइडेबल रिस्क होते हैं ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, बराबर है, क्योंकि कुछ मिस स्टेटमेंट ऑडिटर नहीं ढूंढ सकता, नहीं डिटेक्ट कर सकता, वो एक इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट का. तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर के ऊपर उंगली उठाओ. देखो सब फ्रॉड ढूंढ पाना मुश्किल है, तो ऑडिटर का ऐसा नहीं ऑडिटर ने कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं, बराबर, उसने अपना बेस्ट दिया है, दैट्स इट. ठीक है, और रीजनेबल एश्योरेंस में ऑडिटर इज रिस्पांसिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस, एश्योरेंस लेके रखे दैट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. उसके लिए वो अपनी ड्यूटीज फॉलो करता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी अच्छी तरीके से निभाता है, याद रखना. सो रीजनेबल एश्योरेंस राइट है कि ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट दी व्हाट financial statements taken as a whole are free from material misstatement. याद रखना. रिस्क है means the potential effect of inherent limitation. अब ऑडिट का inherent limitation आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही था बेटा. The potential effects of inherent limitations जो है ऑडिट के are particularly significant in the case of misstatement. बराबर है, मालूम पड़ा, misstatement resulting from fraud. रिस्क है इनहेरेंट लिमिटेशन, कुछ फ्रॉड नहीं ढूंढ पाएगा, कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो ऑडिटर नहीं डिटेक्ट कर पाता, वो रिस्क है. बट ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, बराबर है, ड्यूटी अपनी कर रहा है कि उसने अपना बेस्ट दिया, उसने अपना बेस्ट दिया फॉर डिटेक्टिंग व्हाट फ्रॉड्स के. ठीक है, मालूम पड़ा, क्योंकि देखो मेन उसी के बेस पे वो अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकता है, याद रखना. So the potential effect of inherent limitations are particularly significant. रिस्क होता ही है ऑडिट में, inherent limitations है, राइट. बट ऑडिटर को अपना बेस्ट करना है, जितना हो सके वो अपना ड्यूटी फॉलो करेगा, राइट है. अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है, उसको क्या करेगा, कंटिन्यू करता है बेटा, मालूम पड़ा, फॉर डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए. दैट्स इट, मालूम पड़ा. अब कोई फ्रॉड नहीं मिल पा रहा है तो वो तो इनहेरेंट लिमिटेशंस है ही, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऑडिटर ने अपना ड्यूटी नहीं किया बराबर से, नहीं. मैनेजमेंट फ्रॉड इज देयर. अब रिस्क ऑफ दी
the risk of the auditor not detecting a material misstatement resulting from management fraud is greater than for employee fraud. अब मैनेजमेंट फ्रॉड जो होता है ना बेटा, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, बराबर है, और वो उससे जो मैनेजमेंट फ्रॉड करता है उसका मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी ज्यादा है देन फॉर व्हाट एम्प्लॉय फ्रॉड. अब एम्प्लॉय छोटा मोटा घपला करेगा, बट मैनेजमेंट क्या करता है, बड़ा घपला करता है. समझा कि नहीं, मालूम पड़ा. तो मैनेजमेंट फ्रॉड, तो ये सब ऑडिटर को क्या करना है, देखना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट है कि मैनेजमेंट फ्रॉड. अब मैनेजमेंट फ्रॉड के ऊपर उसको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैनेजमेंट फ्रॉड में मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी मोर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा देन फॉर एम्प्लॉय फ्रॉड, याद रखना, राइट. सो क्या क्या पॉइंट देखा आपने, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, रिस्क है, मैनेजमेंट फ्रॉड है, ऑडिटर का एटीट्यूड. ऑडिटर्स एटीट्यूड में when obtaining reasonable assurance जब भी बोलेगा ना, तो auditor is responsible for maintaining professional skepticism. Professional skepticism is very important for an auditor. Be an alert, एकदम alert होना चाहिए, ऐसे ही नहीं भरोसा कर ले, एकदम alert रहे, सब कुछ, सब मतलब एक तरह से शक की निगाह से देखे सबको, कुछ तो घपला है, कुछ तो झोल है बाबा, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, लाइक दैट. ठीक है, तो बी एन अलर्ट पर्सन होना चाहिए थ्रू आउट द ऑडिट, कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड. क्या, कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स. अभी देखो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर उसका होल्ड होता है, उसको ओवरराइड करके मैनिपुलेशन करवा सकता है वो. एंड रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट ऑडिट प्रोसीजर दैट आर इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग एरर मे नॉट बी इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग फ्रॉड. तो मतलब ऑडिटर्स का एटीट्यूड ऐसा रहेगा, वो एकदम अलर्ट रहना चाहिए, बी एन अलर्ट पर्सन, बराबर है. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है उसको, एकदम अलर्ट होना चाहिए कि भाई हाँ ये इधर ऐसा हो सकता है, जो ऑडिट प्रोसीजर इफेक्टिव होगा एरर्स के लिए मे नॉट बी इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग फ्रॉड, ऐसा भी हो सकता है, बराबर है. तो वो सब उसको फॉलो करना है, वो सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मालूम पड़ा. और उसको हमेशा भी अलर्ट होना चाहिए. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मींस बी एन अलर्ट, ऑलवेज बी एन अलर्ट. ऐसा नहीं हाँ भरोसा कर लिया, बराबर है. लेमन लैंग्वेज में शक की निगाहों से देखना, समझा, अलर्ट रहना एकदम, हो सकता है कुछ ना कुछ तो घपला हो सकता है इसमें, लाइक दैट. सो दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर. मेन 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज में याद रखना, रीजनेबल एश्योरेंस, रिस्क, मैनेजमेंट फ्रॉड, ऑडिटर्स एटीट्यूड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ऑब्जेक्टिव्स आएगा तो उसमें ऐसे पॉइंट्स रहेंगे आपको, ठीक है, ऐसे 240 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर में, ठीक है. तो 4 अगर ऑप्शंस रहेंगे तो उसमें से एक कोई ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, वही आपको पहचानना है, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, दैट्स इट, बराबर है. तो रीजनेबल एश्योरेंस याद रखना, रिस्क, मैनेजमेंट फ्रॉड एंड ऑडिटर्स एटीट्यूड. Got it? So responsibility of the auditor under what? SA 240. After 4th point, ठीक है. Now the next point is what? Objectives. So objectives of the auditor are what? Here in SA 240. First one, to identify and assess the risk of material misstatement. Identify and assess करेगा क्या रिस्क है. Assess the risk of material misstatement. वो जो material misstatement है उसका क्या रिस्क है बेटा, मालूम पड़ा. ऐसे 315 जिसके लिए 315, बराबर है. फिर टू ऐसे 315 डिटेल में भी पढ़ना है अपने को आगे में, आगे. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ व्हाट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. देन टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. क्या ऑब्टेन करेगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, बराबर है, मालूम पड़ा. उसके लिए चाहिए तो वो FAP अप्लाई कर सकते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अबाउट द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं. सो टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं अबाउट द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अबाउट व्हाट? असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो याद रखना, पहला ऑब्जेक्टिव देखा आपने, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. सेकंड, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना अबाउट द असेस्ड रिस्क ऑफ, जो असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा, ठीक है, उसके लिए आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है. ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का. एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली. व्हाट?
टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। ऑडिटर क्या क्या करेगा? टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। अप्रोप्रिएटली वो क्या करेगा बेटा? रिस्पॉन्ड करेगा टू आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है। क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव्स। तीनों पॉइंट याद रखना, एक बार फटाफट बोल दो। क्या? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेकंड, टू ऑब्टेन सफिशिएंट appropriate audit evidence. Third, to respond appropriately to identified or suspected fraud. Got it? Clear? याद रहेगा सबको? फिलहाल ये 5 पॉइंट्स तक हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद का बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बड़ा स्टैंडर्ड है तो पहले ये 5 पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज करना आना पड़ा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वाला पॉइंट करेंगे इसके बाद का।